Hello guys, what's up? This is Sachin. Today we have brought a new question, or we can say a new exercise, that is exercise 7.4 of class 9th. This is chapter 7 triangles, exercise 7.4, first question. Your first question of exercise 7.4 is, show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. एज वी हैव स्टडीड इन द कंसेप्ट, हमने कंसेप्ट में पहले एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में, इसके कंसेप्ट के बारे में, जो ट्राइंगल्स चैप्टर में यूज़ हुए हैं, सबसे फर्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ कंसेप्ट्स की वीडियो देखिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि क्या चीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोसीड। ओके, so our first question is, show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. So before solving, we are going to just draw a diagram for this question. Let this is a right angle triangle A B C, right angle at B. So you can write here solution. In the solution, what we are going to write? Let ABC be a right angle triangle. Let ABC be a right angled triangle. Here angle B is equals to 90 डिग्री। एंगल B हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। अच्छा, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C that is equals to 180 degree. How we know? Due to the, we have to write the reason, angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी हमारा 90 डिग्री 180 होगा। अच्छा, एंगल b हमें पता है कि हमारा 90 है, तो एंगल a प्लस एंगल c कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल b, यानी कि 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि ये कितना आएगा? 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा सॉल्व करके 90 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ये अकेला 90 है और ये एंगल और एंगल ए एंड एंगल सी मिला के 90 डिग्री हो रहा है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बी है दैट इज एंगल बी is greater than angle A. Also angle B is greater than angle C. Don't confuse the sign of angle and the greater and the smaller one. Angle B is greater than angle A. Also angle B is greater than angle C. If the angle is greater, so now see here, angle B is greater than A and greater than C. That is, or AC, we are now talking about the hypotenuse. AC side is greater than BC. Also AC side is greater than AB. Now just see, AC side is greater than BC and AC side is greater than AB. Why? We should write the reason. Side opposite to the larger angle is longer. So we have to write there, since side opposite to larger angle is greater. Side opposite to larger angle is greater. If you're not able to see, I can show you here. The side opposite to the larger angle is greater. So from here we can write, therefore AC is the longest side in triangle ABC, or hypotenuse is the longest side.
You can write here, hence proved. So this was your first question. Now we will move to the second question. This is, you can write the sentence. I'm going, if it is not visible, I'm showing you again. Okay. So now we'll move to the second question. This is question number 2. Question number 2 of exercise 7.4 says that side AB and AC of triangle ABC. This is a triangle ABC. इस ABC triangle के साइड के AB साइड और AC साइड इट इज़ एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q. इसको बढ़ा दिया गया P तक और Q तक. ओके. नाउ एंगल PBC, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं. एंगल PBC, दिस एंगल is less than angle QCB, this angle. So it is given, first of all we can write here, given angle PBC is less than angle QCB. What we need to show? We need to prove that AC is greater than AB. हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाली साइड AC साइड जो है वो AB से बड़ी है. No problem. So we will proceed. Now prove. How we are going to prove is that, first of all, in triangle ABC हम ले लेते हैं. In triangle ABC हमें पता है एंगल ABC प्लस एंगल PBC 180 डिग्री होगा. एंगल ABC प्लस एंगल PBC will be equal to 180 degree. Why? We can write it. We have to write linear pair की वजह से. Linear pair exam you can write also. Now ABC और PBC ये स्ट्रेट लाइन है, तो याला एंगल और याला एंगल मिला के 180 होगा. ओके. नाउ यहाँ से हम एंगल ABC निकाल सकते हैं. So or we can write angle ABC is equals to 180 degree minus angle PBC. Let it be the equation 1. ठीक है. हमने क्या किया, ABC और PBC लीनियर पेयर से लिख के ABC की वैल्यू निकाल ली. सिमिलरली डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे सिमिलरली. ठीक है, मैं डायरेक्टली से लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सेम चीज़ फॉलो करनी है. सिमिलरली व्हाट वी विल राइट, हम इस वाले में करेंगे भाई. ACQB में भी देखो याला एंगल और याला एंगल मिला के 180 डिग्री हो रहा है लीनियर पेयर. सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर सिमिलरली एंगल ACB कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल QCB. ठीक है, 180 डिग्री माइनस एंगल QCB. इस वाले एंगल को निकाल लिया. लेट इट बी इक्वेशन 2. I am repeating again what I did. इस स्ट्रेट लाइन से ये एंगल निकाल लिया, इस स्ट्रेट लाइन से ये वाला एंगल निकाल लिया. ठीक है. नाउ सिंस इट इज गिवन एंगल PBC, ये देखो जो गिवन है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इस पार्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं. एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये हमें गिवन था. हम इसी पार्ट को अब यूटिलाइज करेंगे. देखो PBC इज़ लेस देन QCB है, तो देखो अगर ये छोटा होगा तो 180 में से अगर दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री, तो 180 से जब इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी इससे. फिर से समझने की कोशिश करना, यही एक पॉइंट है जो इसको समझना है. अगर PBC छोटा है, इफ़ PBC स्मॉलर देन QCB, then if we will subtract PBC from 180 degree, means if we will write 180 degree minus angle PBC, that will be greater angle than 180 degree minus angle QCB. भाई अगर ये वैल्यू छोटी है तो 180 से जब इसको माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी इससे. ठीक है ना. सो इट कैन बी रिटन एज, नाउ 180 माइनस PBC, आप यहाँ पे देखो, यू विल राइट हेयर फ्रॉम 1 and 2. आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखना है. फ्रॉम 1 and 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2 what we will see? We will see that 180 minus PBC is equals to angle ABC. So we can write here angle ABC. Okay.
is greater than 180 minus QCB. From second equation we will write that angle ACB. So angle ABC is greater than angle ACB. ये हमने कैसे करा? यूजिंग 1 and 2. अब आप देखो, the side since the side opposite to angle ABC कौन सी है? ए बी सी के साइड अपोजिट देखो कौन सी है? ए सी इज ए सी. सो हेयर यू विल राइट therefore what you are going to write here? therefore अब देखो ए सी साइड हमारी साइड अपोजिट टू ए बी सी ए सी है और ए बी सी बड़ा एंगल है, तो इसका मतलब ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. सो दिस इज hence proved. So this was your question number 2. Question number 2 I am repeating again. क्या किया हमने? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये साइड इसके बड़ी छोटी दी थी. हमने लीनियर पेयर से येलो साइड और येलो साइड निकाली, दैट इज ए बी सी एंड ए सी बी. एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर, देयरफॉर ए सी इज लार्जर देन ए बी. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके, इन आवर क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? एंगल बी एंगल ए से छोटा है, मतलब एंगल बी ये वाला एंगल ए से छोटा है. सिमिलरली एंगल सी इज लेस देन एंगल डी. एंगल सी ये वाला एंगल भी डी से छोटा है. देखो मैंने सिर्फ वही दोनों एंगल को मेंशन किया है अभी जो दोनों छोटे हैं. हमें पता है साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर. इसका मतलब अगर ये एंगल छोटा होगा तो इसके सामने की साइड याली साइड छोटी होगी. किससे? इससे. इस एंगल के सामने वाली साइड से याली साइड छोटी होगी. सिमिलरली याला एंगल छोटा है तो ये वाली साइड छोटी होगी. इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये पूरी साइड इससे छोटी आ जाएगी. यही हमें क्वेश्चन में करना है. अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो, हम करते करते बताते हैं आपको. प्रूफ में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ओ ए बी की. ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी. अब आप देखो ओ ए बी में क्या करेंगे? ट्राइंगल ओ ए बी, सबसे पहले हमें पता है कॉमा एंगल बी जो है, जो गिवन है हमें, इट इज स्मॉलर देन एंगल ए. ये लिख लिया. एंगल बी जो है वो एंगल ए से छोटा है. ओके, इसका मतलब अगर एंगल बी छोटा होगा तो ए ओ साइड विल बी लेस देन बी ओ. लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, क्या लिखोगे? यू विल राइट द रीजन. साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर. साइड opposite to smaller angle is smaller, right? No problem. Now again we are going to write similarly. सिमिलरली का मतलब होता है आपको बार बार एक ही चीज़ शो नहीं करनी है. सिमिलरली अब देखो एंगल सी एंगल डी से छोटा है. एंगल सी इज लेस देन एंगल डी. अगर एंगल सी छोटा है तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ओ डी इज लेस देन, अब कौन सी साइड से? ओ सी. लेट इट बी द सेकेंड इक्वेशन. रीज़न हमारे पास सेम होगा जो हमने ऊपर मेंशन करा है. नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ अच्छा, इसको अब हम कैसे करेंगे? देखो सिंपल, आपको क्या करना है? यू विल राइट एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को. अच्छा, वी विल गेट
अब देखो ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी लेस देन बी ओ प्लस ओ सी होगा. सो इट कैन बी रिटर्न एज ए ओ प्लस ओ डी इज ए डी इज लेस देन बी सी. अच्छा हमें यही प्रूफ करना था. देखो ए डी इज लेस देन बी सी. ए डी ए ओ याली साइड और याली साइड दोनों दोनों केस में हमने बड़ा प्रूफ कर दिया. तो इन दोनों को जोड़ोगे वो भी तो बड़ा ही आएगा इससे. तो ग्रीन पेन से जो मैंने कहा दैट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड एंड ब्राउन वन इज़ अ स्मॉलर साइड. ये इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे. ये मैंने आपको मेंशन कराया है कि इस साइड और इस साइड को हमने ऐड किया है और इस साइड को ऐड किया है. एंड वी हैव शोन हियर दैट ए डी इज़. देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे सॉल्व किया. हमने इस ट्राइंगल में एंगल बी छोटा है तो इसके सामने ये वाली साइड छोटी होगी. सी छोटा है तो इसके सामने की ये वाली साइड छोटी होगी. तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी इससे छोटी आएगी. सो ए डी इज स्मॉलर देन बी सी. सो यू कैन राइट हियर व्हाट यू विल राइट. Hence proved. Okay, so this was your question number. I'm showing it again. This is your question number 2. Now we will proceed to question number okay students 3. So now question number 4. Question number 4 says that AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. I have already written given what we need to prove. Now see the figure. ABCD is a quadrilateral. AB is the smallest side. It is given you already that AB is the smallest side and CD is the largest side. What we need to prove is that we have to prove two parts. In the first part we need to prove that angle A is greater than angle C. Now angle A, this complete angle is greater than angle C. For that we will do a construction. What we will do? We will join A to C. As I have already joined here. So A to C and we will name it as 1 2 3 4. After naming ये आपको easy पड़ जाएगा solve करना कि 1 2 3 4 से. ठीक है. So now as it is given to you that AB is the smallest. अगर AB side smallest है तो हम यहाँ पे अब proof पे आ जाते हैं. So in the proof first we will write down here proof. So after writing the proof we will see in triangle ए बी सी. अब ए बी सी ट्राइंगल में देखो ए बी इज स्मॉलर देन बी सी. ये आपको गिवन है ए बी जो है वो बी सी से छोटा है. क्यों? ये इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू दैट ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट. ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो वैसे गिवन. ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो गिवन, नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ इफ ए बी इज़ द स्मॉलर. अब देखो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? ए बी साइड आपकी छोटी है तो इसके सामने एंगल 2 है. सो वी कैन राइट हेयर एंगल 2 इज स्मॉलर देन एंगल 1. 2 जो है वो 1 से स्मॉलर है. क्यों? एंगल अपोजिट टू आपने भी पूरा पढ़ा है इसको. स्मॉलर साइड इज स्मॉलर और ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो एंगल अपोजिट टू. हम स्मॉलर कंसिडर करें तो स्मॉलर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं. एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर. ओके. नाउ ये तो आपका हो गया. इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. एनी प्रॉब्लम? दिस शुड नॉट बी प्रॉब्लम. नाउ यही चीज हम ट्राइंगल ए सी डी या ए डी सी में लेंगे. ये आपने फर्स्ट ट्राइंगल लिया था, यहाँ पे हम सेकंड ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए डी सी. अब ए डी सी ट्राइंगल में देखो इट इज़ गिवन टू यू दैट ए डी इज स्मॉलर. या फिर आप लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो ए डी इज स्मॉलर देन सी डी. क्यों? आपको रीज़न पता है, सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे गिवन. ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे है इसलिए मैंने अपने सिंपल गिवन लिखा है. तो अगर ए डी साइड आपकी छोटी होगी, ठीक है, तो ए डी के सामने कौन सा एंगल छोटा है? 3. तो यू कैन राइट एंगल 3 इज स्मॉलर देन एंगल 4. लेट इट बी द सेकेंड इक्वेशन. और यहाँ पे रीज़न आप क्या लिखोगे? सेम रीज़न लिखोगे जो यहाँ पे लिखा था. ठीक है, एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर. अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे. सो वी विल डू हियर एडिंग
1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो 2 + 3 एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 + एंगल 4। ये आ रहा है हमारा 2 + 3। अब देखो 2 + 3 मिला के क्या बना रहा है, 2 + 3 मिला के बना रहा है। और यू कैन राइट एंगल सी इज, sorry I have written here equal to, it is not equal to, it is lesser than, I'm really sorry, it is lesser than, angle 2 is less than angle 1 + 4, or you can write angle C is less than angle A, or angle A is greater than angle C. So this is been proved, angle A is greater than angle C। यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। ये आपको थोड़ा सा देख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड पार्ट के कंस्ट्रक्शन में हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे करा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, हमें प्रूव करना है बी और डी को, तो वी विल जॉइन सेकंड पार्ट में जॉइनिंग बी टू डी। अच्छा, अगर हम बी और डी को जॉइन करते हैं तो वेयर इज माय स्केल, ओके, सो लेट अस जॉइन बी टू डी। सो दिस बाय कंस्ट्रक्शन आई हैव जॉइन बी टू डी। अच्छा, बी और डी को हम एंगल फिर से मान लेते हैं, हमने 1 2 3 4 यहाँ माना था, फिर से रिपीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल्स मान के आपको बहुत ईजी पड़ता है, इसलिए मैं एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। बी से डी जॉइन कर दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी नीड टू प्रूव इट अगेन। सेम प्रोसेस करना है, जो हमने लेफ्ट साइड किया है वही हम राइट साइड करने वाले हैं। नो चेंजेस आर देयर। सो इन ट्राइंगल अगेन वी आर गोइंग टू टेक इन ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा, ए बी डी याले ट्राइंगल ले रहे हैं आप, देखो ये मैंने हाफ जो छुपाया है, इसके बाद ए बी डी याले ट्राइंगल में देखो ए बी जो है वो कौन सी साइड है, आपको पता है अभी ए बी स्मॉलर साइड है, तो ए बी इज स्मॉलर देन ए डी, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से वही लिखोगे सेम चीज़, इट इज़ गिवन टू यू। अच्छा, ए बी अगर स्मॉलर होगा तो एंगल 3 विल बी स्मॉलर देन एंगल 1, राइट। सो एंगल 3 इज स्मॉलर देन एंगल 1, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन एंड रीजन यू आर गोइंग टू राइट द सेम जो हमने पहले यूज़ किया था, ओके। नाउ ये तो हम ट्राइंगल ए बी डी दिया, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी के बाद बी सी डी। बी सी डी ट्राइंगल ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्राइंगल में देखो सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, आपने पता है सी डी जो है वो कौन सी है, सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे आप लिखो बी सी इज़ स्मॉलर देन सी डी, क्यों, रीज़न आपको गिवन है। सो अगेन यू आर गोइंग टू राइट हियर गिवन, जो हमने लिखा था वही हम यहाँ वाला प्रूफ यूज़ कर रहे हैं। अब बी सी आपका छोटा होगा क्योंकि सी डी लॉन्गेस्ट साइड है, अब बी सी छोटा होगा तो एंगल 4 छोटा होगा, तो यू कैन राइट एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2। अगेन यू आर गोइंग टू राइट द सेम रीज़न, पूरा मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप यही रीज़न लिखने वाले हो, ठीक है। अब देखो लेट इट बी द इक्वेशन सेकेंड। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट एडिंग 1 and 2 वी गेट, हम दोनों को ऐड करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। 3 + 4 एंगल 3 + एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 + एंगल 1 + एंगल 2। लेस देन को जो साइन है मैं उसको बड़ा बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 + 4 क्या बना रहा है, और यू कैन राइट एंगल डी, एंगल डी इज लेस देन एंगल बी, और you can write angle B is greater than angle D. Again you have proved it. It's so simple. अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें एंगल्स में और ये एंगल लिखे में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। So this was your question number 4 and it's a very nice question for the examination purpose also, okay. So now we are going to do question number 5.